असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। O God, I have taken refuge in Thee. Kindly teach me what to think, what to say, and what to do. Thy will is paramount everywhere and is good for Thy children. Merge my will in Thy will and make me Thy instrument. Welcome to Acharya Ji, Swami Ji. It gives me immense pleasure to welcome to this forum Swami Ji, Swami Swatmanand Ji, a very dynamic leader of the Chinmaya mission from South Mumbai. He has completed his Vedanta course from Powai in 1998 and 2000. That's exactly 26 years ago. Serving the cause of the mission since then has been his priority. He expounds the philosophy of Advaita Vedanta through talks on Bhagavad Gita, Upanishads, and other texts of Vedanta and Bhakti via camps, meditation retreats, interactive discussions sessions for all age groups. His talks encourage one to think and to question oneself about the purpose of one's life. He has conceived and implemented a park at the Sandipani Sadhanalaya, which is named Chinmaya Pradeep. It inspires all with the vision of Vedanta, Upanishads, Gita, Hindu culture through the life of Swami Chinmayanand. He has addressed several corporates in these 26 years. Amongst his other feats, he has been a playwright, written and directed 2 theatrical performances, Adrishya, Quest for the Unseen in the year 2009, and the second one, Just Like That, a play based on Bhagavad Gita in the life of the Anand family and how they discovered harmony by applying the principles of the Bhagavad Gita. This play came out in the year 2015. His simplicity, his foresight, his peaceful nature, and his balanced approach endear him to everyone. Today, we are really blessed to have with us Swamiji on our forum, and he is going to speak on Navvidha Bhakti with special light being thrown on the Tulsi Ramayan, the Shabri and Sri Ramji's Samvad. So, Swamiji, I welcome you on behalf of Yoga Institute and Hansa Ji to today's forum. And couples are slowly joining in. We have 19 screens open now. I request all couples to please turn on their videos. You can keep yourself muted, but please turn on your videos as our esteemed speaker will address the forum. Over to you, Swamiji. Hari Om, Priyambada ji and everybody. Hari Om. Namaskar. Shubh Adhik Mas
Today is a auspicious day. Adhik Maas, Purushottam Maas begins today, and any sadhana done in this Maas has Adhikasya Adhikam Phalam. And we are beginning with this beautiful satsang, especially on the topic of bhakti. So may Bhagwan's Kripa be with all of us. I also thank Hamsa ji, the Yoga Institute, Garima ji, everybody for this wonderful opportunity to do my reflection and manan on Navadha Bhakti. So, what exactly is bhakti? So, when we think of bhakti, what generally comes to our mind is only maybe some bhajan, kirtan, people singing in ecstasy, maybe tears coming down from the eyes of some of the devotees, horripulations. No doubt that is also bhakti, expression of bhakti. But bhakti is something which is much, much more deeper. It is so something beautiful I want to start with is when some things are special, it is sorrow. When one thing is special, it is deep misery. When one thing is everything, it is sheer torture. When nothing is special, all is joy. But when everything is special, it is supreme love, and that is devotion. Bhakti is a vision where I see the divine in everyone, everything. Bhakti is emotions, devotion is emotions turned towards the divine. And so bhakti is not limited to one murti, one form of Bhagwan. When everything is special, when everything I see as divine, Prahlad ji saw Bhagwan in everyone, then that bhav of oneness is bhakti. When that emotion is towards something higher, we always call it as bhakti, Desha Bhakti, Rashtra Bhakti, Matra Bhakti, Pitra Bhakti. So it is to help us to rise above our ego. And only when we rise above ego, we feel supreme happiness in our heart. Through yoga also, that is what one wants to attain. Chitta vritti nirodha, when it is said, and tada drashtu swarupe avasthanam, one wants to abide in that, the self, which is the drashta, which is the witness. And bhakti is, in Bhagavatam it comes, bhakti is the mother of jnana and vairagya. So when there is bhakti, jnana also will arise, vairagya also will arise. And the embodiment of that is Mata Shabari. We think of Mata Shabari only as some, old woman, tribal woman, uneducated woman, but she is one of the most exalted bhaktas of Bhagwan. Who was Mother Shabari? So she was, in her earlier life, actually, she was the queen and very, very devoted, very dedicated. She wanted to do satsang, she wanted to do sadhu seva, but she was a queen. She was married to a great king, and then there were a lot of limitations, restrictions. You decide one language. Should I speak in Hindi? सर जी, मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगी कि थोड़ा सा अगर हिंदी में बात करें, क्योंकि विशेष कपल्स है जो कुछ थोड़ा हिंदी ज्यादा समझ पाते हैं, तो अगर थोड़ा सब लोग मिश्रण हिंदी करें। समझ लेंगे तो हिंदी में ही बात कर लेंगे, कोई बात नहीं। थैंक यू। तो शबरी माता कौन थी? वो पहले एक रानी थी और उनके मन में सत्संग की बहुत चाह थी, सेवा की चाह थी, लेकिन वो नहीं कर पाई क्योंकि बंधन बहुत थे रानी होने के हिसाब से। तो एक बार वो गई कुंभ मेला में और वहां पे उन्होंने साधुओं का दर्शन किया, साधना भी की, लेकिन वो सेवा नहीं कर पाई क्योंकि वो रानी थी। और इसलिए उन्होंने वहां पर जल में, गंगा जी में प्रवेश किया और अपना देह त्याग किया। और फिर उनका जन्म हुआ एक भील के घर में। उनका जन्म ही साधु सेवा के लिए हुआ था। और इसलिए ये कहते हैं कि माता शबरी वो प्रेम की मूर्ति है, भक्ति की मूर्ति है, दया की मूर्ति है। जब
उनका विवाह होने वाला था, जब उनका जन्म हुआ शबरी के रूप में, उनका विवाह होने वाला था, तो वहां पर जो उनकी सभ्यता थी, वहां पर बहुत सारे पशुओं की वो बलि देने वाले थे। और शबरी माता को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि मेरे विवाह के लिए ये जो पशु हैं उनकी बलि दी जा रही है यहाँ पर, और सब फिर वो जो मांस है वो खाने वाले हैं। वो वहां से भाग गई और मतंग ऋषि के आश्रम में पहुंची। और मतंग ऋषि के आश्रम में जब वो पहुंची, उनको ज्ञान की बहुत इच्छा थी, लेकिन वहां पर उनको संशय था कि क्या उन्हें वो अपनाएंगे, तो उनको वो देखना था। तो बहुत दिन तक शबरी माता गुप्त रूप से सेवा करती रही। वो आश्रम में जब सब सो जाते थे तब झाड़ू लगा देती थी, फूल चुनकर पूजा के लिए रख देती थी मतंग ऋषि के लिए। फिर जब कोई कंकड़ पत्थर होते थे वो निकाल देती थी, पेड़ पर जाकर वो सो जाती थी। बहुत दिन ऐसे उन्होंने गुप्त सेवा की। और ये भी एक लक्षण है उनका कि जिनको इतना निस्वार्थ भाव है कि उनको कोई सेवा का कोई रिकॉग्निशन नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, वो सिर्फ सेवा कर रही थी। तब मतंग ऋषि ने उन्हें बुलाया, उनको आश्रम में शरणागति दी, और वो आश्रम में मतंग ऋषि की सेवा भी करती थी, ज्ञान भी प्राप्त करती थी। जब मतंग ऋषि वृद्ध हो गए और जब उनका देह त्याग होने वाला था, तब मतंग ऋषि ने उनको कहा था कि भगवान विष्णु का अवतार होगा भगवान राम के रूप में, और वो इस आश्रम में आएंगे और आपको उनका दर्शन होगा। ऐसा कहकर उन्होंने प्राण त्याग दिए। तब से हर रोज शबरी माता भगवान के आगमन की प्रतीक्षा करती थी। उस समय तो वो युवावस्था में थी, लेकिन बहुत साल बीत गए, अब वो वृद्ध अवस्था में आ गई, लेकिन फिर भी हर रोज उनकी गुरु भक्ति, इनकी गुरु श्रद्धा इतनी थी कि मेरे गुरु ने कहा है तो भगवान अवश्य आएंगे। और हर रोज आश्रम साफ करती थी, आसन बिछाती थी, फूल चुनती थी, माला बनाती थी, जो फल है वो इकट्ठा करती थी, भगवान के स्वागत के लिए सब कुछ तैयार करती थी। और सब करते समय वो भगवान का स्मरण करती थी। और इसीलिए ये तुलसी रामायण में आता है कि शबरी माता जो है वो शब्र अर्थात पेशेंस का प्रतीक है, धीरज का प्रतीक है, कंसिस्टेंट साधना का प्रतीक है, और श्रद्धा का प्रतीक है, सेवा का प्रतीक है। ऐसे शबरी माता के आश्रम में अरण्य कांड में आता है। अरण्य कांड की विशेषता यह है तुलसी रामायण में कि वहां पर तीन पात्र हैं स्त्रियों के। एक है सीता जी, एक है शूर्पणखा, और एक है शबरी। तो शबरी माता सत्व गुण का प्रतीक है इसमें, सीता जी रजोगुण का प्रतीक है, और शूर्पणखा तमोगुण का प्रतीक है। तमोगुण, शूर्पणखा इतनी तामसिक वृत्ति में वहां पर वो आई थी और वो भगवान को रिझाना चाहती थी। एक गलत वेश, एक दूसरा ही वेश, एक आकर्षक वेश धारण कर कर आई थी। अपना राक्षस रूप जो है उसको छुपा कर आई थी। और हमको कहानी पता है इसलिए मैं आगे नहीं जा रहा उसमें। और फिर वो तमोगुण का प्रतीक है। माता सीता है वो रजोगुण का प्रतीक है, क्योंकि भगवान के ना कहने पर भी उनको जो हिरण की इच्छा हुई वो रजोगुण का प्रतीक है। जहाँ जिसमें रजोगुण होता है उसमें इच्छा बहुत प्रबल होती है, और वो इच्छा गलत भी होती है, फिर भी वो व्यक्ति उसको छोड़ नहीं सकता, क्योंकि वो राग होता है, वो राग ही व्यक्ति को गिरा देता है। तो भगवान राम के कहने पर भी कि ये स्वर्ण मृग नहीं है, ये राक्षस है, उन्होंने बात नहीं मानी, और इसीलिए वो रजोगुण का प्रतीक है। और शबरी माता सत्व गुण का प्रतीक है। वो पूर्ण समर्पण के भाव से केवल भगवान की ही इच्छा, उनके दर्शन की इच्छा से वो हर रोज अपनी साधना सेवा कर रही हैं। तो ऐसे शबरी माता के आश्रम में भगवान के पैर स्वयं मुड़ जाते हैं। तुलसी रामायण में ये कहा गया है कि ताहि देहि गति राम उदारा, शबरी के आश्रम पग धारा।
कबंध का वध करके राम जी जब चल रहे थे, तो हर एक आश्रम में जो साधु संत होते हैं वो भगवान को बुलाते हैं, आप आइए आप आइए। लेकिन ये आश्रम ऐसा है कि भगवान राम स्वयं उसकी ओर आकर्षित होकर वहां पर उनके पैर मुड़ जाते हैं। शबरी के आश्रम पगधारा, क्योंकि शबरी का भाव, उनकी तपस्या इतनी प्रबल है। वहां पर शबरी देखी राम ग्रह आए, मुनि के वचन समुझ जिय भाए। शबरी ने जब देखा कि भगवान आए, तो उनको क्या लगा? उनको ये नहीं लगा कि देखो मेरी साधना, मेरी तपस्या इतनी बड़ी है कि भगवान स्वयं मेरे पास चल कर आए हैं। नहीं, तुरंत उनके मन में क्या भाव आया? मुनि के वचन समुझ जिय भाई, कि मेरे गुरु ने जो कहा था वो सत्य हो गया। ये मेरे गुरु की कृपा है कि भगवान आज यहाँ पर आए हैं। ये उनकी नम्रता है, ये उनका भाव है, उनकी गुरु भक्ति है, श्रद्धा है। और जब वो आए वहां पर, तो वो भाव विभोर हो गई। शबरी देखी राम गृह आए, सरसिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर बनमाला। भगवान कैसे हैं? तो उनके आंख जो है कमल नयन, जो है कमल नयन है भगवान के, और बाहु विशाल है। भगवान आजानु बाहु कहते हैं भगवान को। उनके जो हाथ हैं वो उनके घुटनों तक पहुंचते हैं। सरसिज नयन, सरसिज लोचन नयन विशाला, फिर बाहु विशाला, सरसिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट, उनका मुकुट क्या है? जटा के रूप में है। सिर, फिर उर वनमाला, गले में उन्होंने वनमाला पहनी हुई है। श्याम गौर सुंदर दो भाई, भगवान गौर रूप में है, श्याम रंग में है, और लक्ष्मण जी गौर रंग में है। शबरी चरण परी लपटाई, शबरी उनके पैरों में गिर जाती है, उनका स्वागत करती है, और अपने आंखों से, अश्रुओं से उनके पद प्रक्षालन करती है। प्रेम मगन मुख वचन न आवा, उन प्रेम के कारण उनके मुख से कोई वचन नहीं निकल रहे हैं। पुनि पुनि पद सरोज सिरनावा, बार बार अपने उनके चरण में अपने पैर, उनके चरण में अपना शीश झुका रही हैं, उनका पद प्रक्षालन कर रही हैं। सादर जल लय चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे, फिर उनको आसन पे बैठाया और जल से एक्चुअली उनका पद प्रक्षालन भी किया। कंद मूल फुल फल सुरस अति, दिए राम कहु आनी, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखाने। भगवान को उन्होंने कंद मूल फल इत्यादि दिए, और भगवान ने भी बहुत प्रशंसा करके उनको ग्रहण किया। यहाँ तुलसी रामायण में तो ये नहीं आता है कि शबरी माता ने पहले खाए फिर उन्होंने भगवान राम को वो दिए। किसी और रामायण में आया होगा, वाल्मीकि में और तुलसी में, दोनों में ये नहीं आता। तो उन्होंने भगवान राम को भक्ति से दिया। जो कुछ भी भगवान को भक्ति से दिया जाता है, भगवान उस भक्ति का आदर करते हैं। भगवान को बहुत सारे विस्तार से कोई भोग चढ़ा सकता है तो वो चढ़ाए, लेकिन कोई केवल एक फल भी दे दे तो भगवान तृप्त हो जाते हैं, लेकिन भाव से फल देना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पर वो कहते हैं कि फल इत्यादि देने के बाद बहुत नम्रता से वो गई भगवान के समक्ष, कहा के ही विधि स्तुति करहु तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी। मैं आपकी स्तुति कैसे करूंगी, मैं तो अधम जाति से हूं, जड़मति हूं। अब माता शबरी अपने आप को जड़मति कह रही हैं, तो इतनी भक्ति भाव से है, इतनी नम्रता पूर्ण है, श्रद्धा भाव से है, गुरु भक्ति सेवा, इनमें इतने सारे उनके गुण हैं, फिर भी वो कहती हैं जड़मति भारी। ये उनकी नम्रता है। दिस इज नॉट फॉल्स ह्यूमिलिटी, ये नम्रता है, क्योंकि भगवान के सामने हम जो कुछ भी हो, भगवान तो अनंत हैं, तो उनके सामने तो जो भी है वो कम ही होने वाले हैं। इसीलिए वो कहती हैं अधम जाति में जड़मति भारी, अधमति अधम अधम अति नारी, तिन मह मैं मति मंद अघारी। मैं अधम से अधम हूं, तो इसीलिए मैं कैसे आपकी स्तुति कर सकती हूं। यही भगवान की स्तुति हो गई एक्चुअली। जिन्होंने अपने आप को पूर्ण रूप से भगवान को समर्पित कर दिया और भगवान को ही सर्वश्रेष्ठ मान लिया, वही भगवान की सर्वोत्तम स्तुति हो गई।
अब भगवान उनको क्या कहते हैं, कहा रघुपति सुनो भामिनी बाता, भगवान उनको कहते हैं सुनो भामिनी। आप देखिए यहाँ पर शूर्पणखा इतना एक आकर्षक युवती का रूप बनाकर भगवान को रिझाने के लिए गई थी, लेकिन भगवान रिझाए नहीं वहां पर। और यहाँ पर शबरी वृद्ध हो गई हैं, लेकिन भगवान उनको कहते हैं भामिनी। भामिनी मतलब जो अति सुंदर है, क्योंकि भगवान बाहरी सुंदरता नहीं देखते, भगवान क्या देखते हैं कि भाव क्या है भक्त का। तो कहते हैं कि कहा रघुपति सुनो भामिनी बाता, मानव एक भगति कर नाता। कहते हैं कि मैं केवल एक नाता ही मानता हूं, और वो नाता क्या है, भक्ति का नाता। अब यहां पर भगवान कहते हैं कि एक व्यक्ति के पास ये सब हो सकता है, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। ये 10 चीजें व्यक्ति में हो सकती है, या 10 में से 5 6 7 जितने भी हो सकती हैं। भगवान क्या कहते हैं कि अगर इन 10 चीजों में भक्ति नहीं है, इन 10 चीजों के साथ आप में अगर भक्ति नहीं है, तो ये 10 के 10 चीजें व्यर्थ है। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। ये 10 चीजें, भगतिहीन नर सोहई कैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा। भक्ति अगर नहीं है तो वो व्यक्ति कैसा है, जैसे कोई बादल हो लेकिन वो बारिश ही ना करे, बिन जल बारिद देखिए जैसा। इसीलिए अब भक्ति का उपदेश देते हैं माता शबरी को भगवान राम। माता शबरी को तो इसकी आवश्यकता है नहीं, वो तो भक्त हैं ऑलरेडी, और उनमें ये 9 के 9 गुण जो भगवान बताने वाले हैं नवधा भक्ति के रूप में, वो सब है। लेकिन उनके द्वारा, उनके माध्यम से हमें भगवान ये नवधा भक्ति का उपदेश दे रहे हैं कि 9 चरण है भक्ति के, और इन 9 चरणों को एक के बाद एक के बाद एक व्यक्ति जब चढ़ता है तो वो भगवान से अपना एकत्व अनुभव कर सकता है। तो वो क्या कहते हैं यहाँ पर, प्रथम नवधा भगति सुनहु तो ही पाही, सावधान सुनो धर्म मन माही। सावधानी से सुनो और उसको अपने मन में धारण करो कि ये नवधा भक्ति क्या है। 9 नंबर जो है हमारे शास्त्र में बहुत ही शुभ माना गया है, क्योंकि 9 नंबर जो है, भगवान राम का जन्म भी कब हुआ, राम नवमी को, नवमी तिथि मधुमास पुनीता। तो 9 नंबर ब्रह्म का प्रतीक है, क्योंकि उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, वो परिवर्तन रहित एक संख्या का प्रतीक है। जैसे 9 के जो भी मल्टीपल्स हैं उसको जोड़ देंगे तो 9 पर ही आ जाएंगे, 18 27 36 45, वो सबको जोड़ने से क्या होगा, वापस 9 पर ही आ जाएगा। तो 9 जो नंबर है वो विकार रहित ब्रह्म का प्रतीक है, और राम जी उस ब्रह्म का प्रतीक है, और भक्ति के द्वारा उसी ब्रह्म को हम प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए नवधा भक्ति के बारे में बताते हैं। तो ये नवधा भक्ति में क्या कहते हैं, प्रथम भगति संतन कर संगा। पहली भक्ति क्या है, संतों का संग करो। भक्ति अगर हमें जागृत करनी है तो संत का संग उसका सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पहला चरण ये है। केवल बुक पढ़ने से भक्ति नहीं आएगी, जो भक्त है उनके संग में, उनके साथ संग करने से, जो संत है उनका संग करने से, वो कैसे जीते हैं, उनके लक्षण क्या है, उनसे भगवान के बारे में सुने, उनके अनुभवों को भी सुने, साधना कैसे करनी चाहिए, वो सब जब हम सुनते हैं, जैसे हम कहते हैं ना कि एक दीपक को प्रगटाने के लिए एक दूसरा दीपक जो ऑलरेडी जला हुआ है उसका सहारा लेकर उसको हम प्रज्वलित कर सकते हैं। इसी तरह जिसके मन में भक्ति है, उनके वचन जब भगवान के बारे में जब वो बताते हैं, सत्संग जब करते हैं, तब हमारा मन उस वाणी से प्रभावित भी होता है, और उस व्यक्ति के आचरण से, उनके जीवन से। क्योंकि भक्ति केवल कोई आडंबर नहीं है, भक्ति प्रेम है, एकाग्रता है, भक्ति शरणागति है, समर्पण है, भक्ति एक भाव है। और इस भक्ति भाव में व्यक्ति जब होता है तो उनके संपर्क में रहने से भक्ति
हम में भी प्रकट हो जाती है। और इसीलिए यहां पर कहा प्रथम भगति संतन कर संगा। संत कौन होता है? जिसके संताप का अंत हो गया वो है संत। जिसके मन में जितने भी विकार थे सब शांत हो गए, जिसका मन शांत हो गया वो है संत। मन शांत कब हो सकता है? जब अहंकार का पूर्ण रूप से त्याग होता है, तभी मन शांत हो सकता है। अगर कोई ये समझता है कि कोई टेक्निक करके मैं मन शांत कर लूंगा, कुछ समय के लिए शांत हो पाएगा, लेकिन संताप का अंत नहीं होगा। रमण महर्षि कहते हैं कि प्राण वीक्षण तो अच्छी चीज है, करना ही चाहिए, उससे मन शांत होगा, लेकिन वहां पर उसको रोकना नहीं है। वायुरोधनात् लीयते मनः जाल पक्षीवत रोध साधनम। कि वायु के रोधन से मन शांत होगा, लेकिन वो पक्षी के ऊपर आपने जाल बिछाया ऐसा होगा। जब तक वो जाल है तब तक वो जो पक्षी है वो बैठा रहेगा वहां पर, लेकिन जैसे ही आपने वो जाल उठा दिया, पक्षी उड़ जाएगा। इसी तरह जब तक वायु रोधन करते हैं, आप श्वास का निरीक्षण करते हैं, तब तक मन शांत रहेगा। जैसे ही वो निरीक्षण समाप्त हुआ, भटक रहा है, या वो निरीक्षण करते करते भी भटक जाएगा, वापस उसको लाना पड़ेगा। तो केवल कोई टेक्निक से मन शांत नहीं हो सकता, शुद्धि से मन शांत होता है। चित्त की शुद्धि चाहिए, और भक्ति उसी के लिए आवश्यक है कि जब समर्पण होता है। किसी ने बहुत सुंदर कहा, ईगो का अर्थ क्या होता है? एडजिंग गुडनेस आउट एंड एडजिंग गॉड आउट। कि जब अहंकार होता है, ईगो होता है, तब व्यक्ति के मन में गुडनेस और गॉड दोनों नहीं रहते, तो वो व्यक्ति बहुत अहंकारवश होता है, तो डिस्टर्ब भी रहेगा। तो इसीलिए संत का संग करना चाहिए, जिसने स्वयं अपने मन को शांत किया है। ऐसे संत के संग से भक्ति उत्पन्न होती है। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। संत के साथ संग करेंगे तो क्या चर्चा होनी चाहिए? भगवान की कथा की चर्चा होनी चाहिए। अब संत के पास आप जाकर पूछोगे कि भाई मेरा बिजनेस में मुझे प्रॉफिट कैसे मिले, मुझे परिवार में मेरा बच्चा नहीं हो रहा है तो बच्चा कैसे हो जाए, मुझे वो डील कहाँ से प्राप्त हो, मेरा कोई हार्ट ब्रेक हो गया उसको मैं कैसे डील करूं। अब समाधान तो हम अपने जो प्रॉब्लम है उसका मांग सकते हैं, लेकिन संत का प्रयोजन वो नहीं है। संत का प्रयोजन क्या है? भगवान की कथा सुनो, और भगवान की कथा का श्रवण करते करते उसमें हमारी रुचि होनी चाहिए कि मुझे भगवान का गुणगान सुनना है। नहीं तो हम तो अपने गुणगान सुनने में बहुत आतुर होते हैं, अपनी प्रशंसा हमको चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या कहा भगवान ने कि दूसरी रति मम कथा प्रसंग, रति होनी चाहिए भगवान के कथा प्रसंग में। बार बार सुनने पर भी भगवान की जो कथा है उसमें रस आना चाहिए। तो वो भक्ति का दूसरा लक्षण है कि बार बार जब व्यक्ति सुनता है, सत्संग करता है, तो मन भगवान में लगता है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको एक ही कहानी आप बार बार सुनाते रहो, लेकिन उनको बहुत मजा आता है उसमें। और अगर आपको जल्दी कोई कहानी खत्म करनी है तो आपने थोड़ी डिटेल मिस कर दी, तो नहीं नहीं नहीं, ये नहीं बोला आपने, वो नहीं बोला आपने, क्योंकि उसको उस कथा में इतनी रुचि है। इसी तरह यहां पर कहते हैं कि दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। जब भगवान की कथा में रुचि आना शुरू हो जाए, उसका अर्थ है अहंकार का त्याग होने लगा है। उसका अर्थ है भगवान की कृपा प्रकट हो रही है, क्योंकि भगवान की कृपा के बिना उनकी कथा में रुचि ही आएगी ही नहीं। और जितना भगवान की कथा में रुचि आएगी, उतना संसार से राग द्वेष क्या कहते हैं वो कम होता जाएगा। और जितना संसार से राग द्वेष कम होगा, उतना मन आनंदित रहेगा। किसी भी परिस्थिति में व्यक्ति आनंदित रहेगा। ये भक्ति का प्रभाव है। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। और जब हम कथा सुनते हैं तो हमारे जीवन में परिवर्तन होना चाहिए। कथा क्यों सुनते हैं? भगवान के प्रति भक्ति उत्पन्न करने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए। कुछ लोग जाते हैं कथा में कान पवित्र करने के लिए। कान पवित्र करने के लिए हम कथा में नहीं जाते, मन पवित्र करने के लिए जाना चाहिए। इसीलिए अखंडानंद जी महाराज कहते थे कि कथा में जाने का अर्थ है कि बॉक्सिंग रिंग में आप गए हो,
कथा का अर्थ ये होता है कि आपने मल्ल युद्ध किया, बॉक्सिंग आपने किया, और बॉक्सिंग में जब आप करते हैं तो 2-3 जब घूंसे पड़ते हैं ना तो थोड़ा खून निकलता है। तो कहे कि अगर आप कथा में गए हैं और आपका खून नहीं निकला, मतलब आपने कथा की ही नहीं। अर्थात क्या, कि जब हम कथा सुनते हैं तो हमें ऐसा लगना चाहिए कि ये जीवन में जो मेरे जीवन में जो ये चीज है, राग है, द्वेष है, ये गलत है, मुझे परिवर्तित करना है अपने आप को। अपनी गलतियों का अनुभव होना चाहिए और भगवान के प्रति भक्ति बढ़नी चाहिए कि हाँ, मुझे ऐसा जीवन जीना है, धार्मिक जीवन जीना है, भक्तिमय सेवामय जीवन जीना है। लेकिन कई लोग कथा में जाते हैं अपने आप को परिवर्तित करने के लिए नहीं, दूसरों को ले जाएंगे, बोले देखो आपके लिए कह रहे ये प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। गुरु जब कथा में जाते हैं, ज्ञान की इच्छा होती है, तब स्वाभाविक रूप से ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु की आवश्यकता है। केवल कोई किताब पढ़ने से ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता, गुरु की आवश्यकता है। इसीलिए आप योग भी जो सीखते हैं तो हमसा जी आपको सिखा रही है ना इतने निपुणता से, तभी तो सीख पाएंगे, नहीं तो आप कोई भी किताब भी पढ़ के आप करना चालू कर दो, फ्रैक्चर भी हो जाएगा वैसे नहीं हो सकता है। भक्ति है, वेदांत है, योग है, ये सब एक गुरु के माध्यम से ही सीखा जा सकता है। तो ऐसे गुरु के प्रति समर्पित होना, जो श्रोत्रिय है, ब्रह्मनिष्ठ है, उनकी सेवा करना मान त्याग करके, गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। उनके चरणों की सेवा क्यों करनी चाहिए? क्योंकि चरण जो है वो ज्ञान का प्रतीक है। जिस ज्ञान में, जिस अध्यात्म में, जिस आदर्श में वो गुरु स्थापित हैं, उनके चरण की सेवा का अर्थ है उन ज्ञान, आदर्श और उन मूल्यों की सेवा करना। फिर कहते हैं कि चौथी भगति मम गुण गण करई कपट तजी ज्ञान, कि भगवान के गुण का गान करना चाहिए, कपट त्याग करके, मन में शुद्धता से। जितना हम भगवान के गुणों का गान करेंगे उतना हमारी वाणी शुद्ध होगी। भगवान का नाम जप करेंगे, वो पांचवें स्टेप में आएगा, लेकिन भगवान के गुण का गान। इसलिए यहां पर क्या कहा कि ज्ञान मार्ग है ध्यान प्रधान, भक्ति मार्ग है गुणगान प्रधान। गुणगान करना चाहिए। पांचवी भक्ति क्या है? मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, भगवान के मंत्र का जाप करना चाहिए और उसमें दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि ये मंत्र मुझे भगवान का दर्शन कराएगा। जैसे शबरी माता में इतनी श्रद्धा थी कि भगवान अवश्य आएंगे, तो भगवान का नाम बहुत ही पावरफुल होता है, वो केवल कोई शब्द नहीं होता, वो भगवान का ही स्वरूप होता है, वांग्मय स्वरूप होता है भगवान का, उनका नाम। अगर राम कहा तो राम केवल र और म अक्षर नहीं है, वो राम का ही वांग्मय रूप है और उसमें इतनी शक्ति है कि वो राम जी को प्रकट कर देंगे, क्योंकि वो भगवान नाम महिमा है और कलयुग में केवल नाम आधारा। तो भगवान के नाम का जब सतत, बाकी सब साधनाएं हम कई बार के अलग अलग साधन चाहिए, देश काल वस्तु के हिसाब से हो सकती है, नहीं हो सकती है, लेकिन नाम स्मरण कभी भी कहीं पर भी हो सकता है। तो पंचम मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, वेदों में इसकी महिमा गाई है। फिर कहते हैं छठ दम शील बिरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठी भक्ति का चरण क्या है कि दम मतलब इंद्रियों के निग्रह से जीना चाहिए। कोई व्यक्ति को यह लगता है कि मैं भक्त हूं लेकिन इंद्रिय संयम की आवश्यकता ही नहीं है, खाओ पियो मौज करो, कुछ भी खाओ, कुछ भी देखो, कहीं पर भी जाओ, कैसे भी बात करो, नहीं। भक्त को इंद्रियों के संयम में रहना है, क्योंकि भक्ति को सुरक्षित रखने के लिए इंद्रिय संयम की आवश्यकता है और अच्छे गुण का भी आधान होना चाहिए। छठ दम शील, शील का अर्थ होता है गुण, और बिरति बहुकर्मा, बहुत सारा काम 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 काम, वर्कहोलिक जिसको कहते हैं आजकल, इतना काम करेंगे कि भाई भक्ति करने के लिए समय ही नहीं है। मनुष्य जन्म प्राप्त करके अगर कोई व्यक्ति भगवान का नाम 5 मिनट के लिए भी एकाग्रता से नहीं ले सकता,
तो उसका मनुष्य जन्म ही व्यर्थ है, क्योंकि बाकी सब चीजें तो अन्य जन्मों में भी हो सकती है। भगवान नाम अगर हम नहीं ले पाए तो क्या, हमने इतना काम करके क्या करोगे? दुनिया में कमाए क्या हीरे क्या मोती, यारों ये याद रहे कफन में जेब नहीं होती। वो भी गए खाली हाथ जो मुल्कों के वाली थे, सिकंदर जब गया जहां से तो दोनों हाथ खाली थे। तो कितना धन का संचय करेंगे, क्या करेंगे? उसकी आवश्यकता है, लेकिन भगवान नाम को त्याग करके उतना कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये भक्ति का छठा लक्षण है। निरत निरंतर सज्जन धर्म, हमेशा सज्जनता से व्यक्ति अपना जीवन व्यतीत करता है। सातव सम मोहि मय जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा। सातवां चरण क्या है कि भगवान को सब में देखें। भगवान केवल एक मूर्ति नहीं है, भगवान केवल एक रूप नहीं है, भगवान परम तत्व है, सच्चिदानंद ब्रह्म है जो सब में व्याप्त है। भगवान को सब में देखना और सबको आदर पूर्वक प्रेम पूर्वक उनके साथ व्यवहार करना, यह भक्ति का सातवां लक्षण है। और वो कहते हैं कि मुझसे भी ज्यादा एक संत का आप आदर करो। क्यों? क्योंकि संत हमको भगवान से मिला देते हैं। आठवां जथा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं देखई पर दोषा। आठवां चरण भक्ति का क्या है? संतोष होना चाहिए जीवन में। आज लोग क्या कहते हैं कि आई एम नॉट कंटेंटेड, ग्रीड इज गुड। कंटेंट हो जाओगे तो प्रगति नहीं कर पाओगे। अरे कंटेंट हो जाओगे तो प्रगति नहीं कर पाओगे, ये गलत धारणा है। जो लोग कंटेंट नहीं होते, जिनमें संतोष नहीं है ना, वो बहुत क्रिबिंग, कंप्लेनिंग, विक्टिमाइजिंग, क्राइंग वो करते ही रहते हैं हमेशा। कुछ भी उनको जीवन में प्राप्त हो लेकिन उसमें उनको सुखी नहीं है, हमेशा एक इनसिक्योरिटी में उनका वर्तन होता है। इसीलिए संतोष जिसके मन में होता है, संतोष एक सात्विक क्वालिटी है और कॉम्प्लेसेंसी तमोगुण की क्वालिटी है। वो दोनों साथ नहीं हो सकते। कॉम्प्लेसेंसी एंड कंटेंटमेंट आर नॉट इक्वल। जिसके मन में संतोष है, उसका मन जब शांत है तो उसी में क्रिएटिव आइडियाज आएंगे, नई नई चीजें वो कर सकते हैं, उत्साह होगा, एंथुजियाज्म, इंस्पिरेशन, ये सब सत्वगुण के क्वालिटीज हैं। और तब व्यक्ति बड़ा भी सोच सकता है, बहुत कुछ प्राप्त कर सकता है और सुखी भी रहेगा। इसीलिए भक्ति अगर करनी है तो संतोष आवश्यक है, नहीं तो व्यक्ति का मन बहिर्मुख होगा। आठव जथा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं देखई पर दोषा। दूसरों का दोष निकालना बंद करना चाहिए, मतलब फॉल्ट फाइंडिंग टेंडेंसी। ऐसा नहीं कि कुछ गलत है तो उसको हम नोटिस ना करें या फीडबैक ना दें, वो तो हमको करना चाहिए, अपने में भी सुधारना चाहिए, दूसरों को भी बताना चाहिए। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जहां अच्छा है वहां पर कुछ अच्छा ही दिखेगा नहीं उनको, एक फॉल्ट होगा ना उसी पर इतना हावी हो जाएंगे। कई बार हम अपने आप पर भी इतने निष्ठुर होते हैं, कठोर होते हैं कि हम अपनी अच्छाई को नहीं देखते और कुछ वीकनेस होती है उसी को पकड़ के आई एम नो गुड, आई एम यूजलेस, आई एम दिस, आई एम दैट, इतना सेल्फ कंडेमनेशन करते हैं। भक्त वो नहीं करता। कुछ गलत है तो उसको सुधारेंगे भगवान की कृपा से। हम भगवान के अंश हैं, अमृतस्य पुत्राः। वी आर नॉट सिनर्स, वी आर चिल्ड्रन ऑफ इमॉर्टैलिटी। तो ये अगर हमको पता है तो हमारे दोषों का हम निवारण करेंगे, लेकिन नो सेल्फ कंडेमनेशन। आखिरी में वो क्या कहते हैं? नवम सरल सन सब छल हीना, मम भरोसा हिय हर्ष न दीना। नौवा क्या है कि पूर्ण रूप से भगवान के शरणागत हो और समता का भाव हो। एकदम एक्साइटेड हो जाए, एकदम डिप्रेस्ड हो जाए, ये दोनों एक्सट्रीम्स अवॉइड करके बैलेंस में रहें। न हर्ष हिय न हर्ष न दीना। और अब क्या कहते हैं भगवान? नवमहु एक ही, एक जिन के होई। नौ में से एक भी अगर किसी के पास है, नारी पुरुष सचराचर, कोई नारी हो पुरुष हो कोई भी हो, तो वो भगवान को अति प्रिय हो जाता है। सोई अति सय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। कोई एक भी अगर हो तो वो व्यक्ति भगवान को बहुत प्रिय हो जाएगा। राम जी यहाँ कह रहे हैं कि हे शबरी, आप में तो 9 के 9 हैं। तो ये शबरी माता के लिए बहुत बड़ा एक कॉम्प्लीमेंट है, भगवान ने स्वयं दिया। और फिर शबरी माता क्या करती है?
वो, और भगवान ये भी कहते हैं कि मम दर्शन फल परम अनुपा, मेरे दर्शन का फल क्या है, बहुत ही एक अनूप है, मतलब इट इज इनकॉम्परेबल। वो क्या है? जीव पाव निज सहज स्वरूपा, कि जो व्यक्ति है वो अपना जीव भाव त्याग करके भगवान से एकत्व का अनुभव करता है, अपने स्वरूप का ज्ञान उसको हो जाता है। तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, ये स्थिति उसको प्राप्त हो जाती है। तो ये है भगवान के दर्शन का परिणाम। भगवान का दर्शन बाह्य रूप से तो हो ही सकता है, लेकिन उसका मुख्य प्रयोजन क्या है? भगवान उसको स्वरूप का ज्ञान करा देते हैं उस भक्त को। और यहाँ पर जनक सुता कही सुधि भामिनी, जा नहीं कहू करिवर गामिनी, इस तरह शबरी माता को उपदेश दिया भगवान ने, और शबरी माता ने भी बहुत प्रेम से उनकी शरणागति ली, और उन्होंने भगवान को यह भी बताया कि अब आप आगे जाइए, सुग्रीव से मिलिए, वो आपकी सहायता करेंगे सीता जी को खोज करने में। और जैसे भगवान ने प्रस्थान किया, शबरी माता ने योग अग्नि में अपना देह त्याग कर दिया, क्योंकि अब उनके जीवन का और कोई प्रयोजन बचा नहीं, भगवान का दर्शन हो गया, उनके लिए ही वो रुकी थी। तो ये है नवधा भक्ति। इसमें से कोई भी एक चरण भी अगर व्यक्ति अपना लेता है तो उसका जीवन धन्य हो जाएगा। तो इतना कहकर मैं वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। हरिओम। स्वामी जी, हमें कहने में बहुत खेद हो रहा है हाँ। कि हंसा जी आज सेशन ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। तो अच्छा। जैसे आपकी कुछ कारणवश, तो जैसे आपकी इच्छा थी कि आप 6 बजे के बाद दूसरी जगह पे प्रवचन हाँ। देने वाले हैं, तो उस इच्छा को राम जी ने स्वीकार कर लिया है और हंसा जी बात नहीं करेंगे, तो हम सीधे प्रश्न उत्तरों के सिलसिले में चलते हैं। हाँ जिस जी। किसी को प्रश्न पूछना है वो चैट बॉक्स में लिख सकता है या अपने आप को अनम्यूट करके प्रश्न पूछ सकता है। तो सबसे पहले प्रश्न हम आपसे पूछना चाहेंगे कि ये जो हम गुणों की बात कर रहे हैं, तो ये इंग्लिश में इसको वाइब्रेशंस कहते हैं, हिंदी में इसे तरंगे कहते हैं। तो ये तरंगे जो है, इनके अनगिनत कॉम्बिनेशंस होते हैं हम लोगों में, मतलब सत्व रजस तमस के। तो ये सत्व के ओर के की तरंगे बढ़ाने के लिए आप हम लोगों जैसे हाउस होल्डर्स के लिए क्या सुझाव देंगे? तो सत्वगुण बढ़ाने के लिए भागवत जी में एक बहुत सुंदर एक श्लोक है। उसमें कहा गया कि इन 10 चीजों को अगर आप परिवर्तित कर दें तो सत्वगुण बढ़ेगा। इन 10 चीजों में अगर आपने सत्वगुण लेके आ गए तो आपका जीवन सात्विक हो जाएगा। क्या है? आगम। आगम का अर्थ है यहाँ पर कि जो आप पढ़ते हैं, जो कुछ भी आप पढ़ते हैं, आजकल जो ब्राउजिंग है या फोन है, न्यूज़पेपर है, जो कुछ भी है, द इनपुट्स दैट यू टेक टू स्टडी, टू रीड, टू अंडरस्टैंड, उसको सात्विक करना चाहिए पहले। आगम। उसका अर्थ ये भी है कि जो राजसिक और तामसिक इन्फ्लुएंसेस है उसको कम करना चाहिए। अगर वो सब हमने कम नहीं किया, आप जितना भी सात्विक पढ़ते रहो लेकिन ज्यादा 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 राजसिक तामसिक अगर बढ़ाते रहे तो उसका परिणाम नहीं आएगा ठीक से। आगम। अप का अर्थ है पानी। पानी का अर्थ यहाँ पर आहार और पानी दोनों, फूड एंड वाटर बोथ हैव टू बिकम सात्विक। 17वें अध्याय में गीता में सात्विक आहार के बारे में भगवान बताते हैं। आगम अप प्रजा। जिन लोगों के साथ आपकी कंपनी है, क्या वो सात्विक लोग हैं? हमारे संसार में सब अलग अलग प्रकार के लोग तो होते हैं, लेकिन जो मुख्य हमारी कंपनी है, जिनके साथ हम ज्यादा समय बिताते हैं, वो सात्विक है या नहीं है? कितना सत्संग होता है, कितना एक इंस्पायरिंग चर्चाएं होती हैं। तो आगम अप प्रजा देश, कौन सी जगह पर आप जाते हैं? क्या आप तीर्थ स्थान भी जाते हैं, मंदिर भी जाते हैं, इंस्पायरिंग जगह पे जाते हैं, आर्ट, डांस, म्यूजिक, ऐसे अच्छी अच्छी चीजें जो सीखते हैं जिससे मन एक सात्विक स्थिति में रहे। ऐसा आवश्यक नहीं कि केवल स्पिरिचुअल प्लेसेस ही जानी है, लेकिन इंस्पायरिंग प्लेसेस।
how much time do you spend in inspiring places which helps to manifest your potential. फिर कहते हैं काल, समय का आप कैसे प्रयोग करते हैं. जैसे ब्रह्म मुहूर्त में सत्वगुण सबसे ज्यादा होता है. क्या उस समय आप उठ जाते हैं और ध्यान साधना करते हैं, भजन कीर्तन पूजा जप या कोई भी अपना मनन निधिध्यासन जो भी करना है. तो समय का उपयोग, क्या आप जल्दी सो जाते हैं, जल्दी उठ जाते हैं. तो जब वातावरण में ज्यादा तमस है तब आप राजसिक हो रहे हैं कि भाई रात को सोने का समय उस समय जाके काम कर रहे हैं, सुबह के उठने का समय उस समय जाकर सो रहे हैं. तो ये प्रकृति की पूरी जो एक साइकिल है उसको आप रिवर्स अगर करेंगे तो फिर बॉडी क्लॉक जो है वो सर्केडियन रिदम जो है वो बहुत डिस्टर्ब हो जाएगी. तो कहते हैं काल का सदुपयोग करना है. फिर कहते हैं कर्म, जो भी आप कर्म करते हैं वो एक सात्विक भाव से भगवान को समर्पित करके, देश को, अपने परिवार को समर्पित करके, एक निस्वार्थ भाव से अगर आप कर रहे हैं तो वो है कर्म. उसमें भी जो हिंसात्मक कर्म है उन सब का त्याग करना चाहिए. फिर जन्म, जन्म का अर्थ होता है यहाँ पर इनिशिएशन. विच आर द थिंग्स इन विच यू आर इनिशिएटेड. कई लोग जो होते हैं लोगों को एक गलत चीज में इनिशिएट करते हैं, ड्रग्स में, डिप्रेशन ड्रग्स में, फिर अल्कोहल में, फिर जो कहते हैं कभी कभी एक गलत गैम्बलिंग में, इस तरह की चीजों में लोगों को इनिशिएट किया जाता है और लोग भी इनिशिएशन ले लेते हैं. तो फिर वो रजोगुण हो जाएगा, तमोगुण हो जाएगा. Which are the places, how are you getting initiated, in what kind of activities, knowledge, तो वो सात्विक होना चाहिए. फिर कहते हैं ध्यानम, कि आपका ध्यान, आपका मिशन स्टेटमेंट क्या है, व्हाट इज योर फोकस. क्या आपका फोकस एक उच्च सात्विक लक्ष्य पर है, क्या केवल आप अपने बारे में ही सोचते हैं. जितना आप निस्वार्थ होंगे उतना आपका सात्विक वाइब्रेशन बढ़ेगा. फिर ध्यानम, मंत्र, मंत्र का अर्थ होता है क्या आप रिपीट करते हैं अपने मन में. डू यू हैव रेपिटेटिव थॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी, इंस्पिरेशन. मंत्र एक फॉर्मल मंत्र भी जो है स्पिरिचुअलिटी में वो. एंड सेकंड, मंत्र का अर्थ होता है जिसका आप मनन करते हैं. सो मेनी पीपल दे थिंक सेल्फ कंडेमनेशन थॉट्स, अपने आप को नीचे ही गिराते हैं. तो पॉजिटिव थॉट्स, आई एम सक्सेसफुल, आई एम हैप्पी, आई एम कंटेंटेड, आई एम अ डिवोटी, ऐसी भावनाएं. आई एम लव्ड, आई एम लविंग, ये सब जो पॉजिटिव सेल्फ टॉक जो बोलते हैं आजकल, तो ये है मंत्र. और आखिरी है संस्कार, कि आपके संस्कार कैसे हैं, मतलब व्हाट आर द इंप्रेशंस यू आर हैविंग ऑन योर माइंड. सात्विक संस्कार अगर है तो हिंदू सभ्यता में तो 16 संस्कार भी है उसी के लिए, कि अलग अलग जीवन के अवस्थाओं में व्यक्ति को संस्कार दिया जाता है ताकि वो बार बार उसमें सत्वगुण का वर्धन हो. तो ये 10 चीजें हैं, इनको हम अगर सात्विक बनाते हैं तो हमारा जीवन सात्विक हो जाएगा. Anyone has a question, please unmute and ask. Rafe, can you ask just the question and not the first part which you have written? Can you ask the question एकदम संक्षेप में? नमस्ते गुरुजी. गुरुजी, मुझे ऐसा महसूस होता है कि मेरे सारे प्रॉब्लम ज्यादातर फिजिकल लेवल पे ही हैं. और जैसे कि कभी कोई जॉइंट फैमिली की आ गया, और इस मामले में मैं हमेशा ऐसा लगता है कि जो फैमिली मेंबर्स हैं, जो सेकंड कजन्स, फर्स्ट कजन्स हैं, जिनको जुड़ना चाहिए क्योंकि हमारी पुरानी पुश्तैनी प्रॉपर्टीज है, वो आते नहीं है, हेल्प नहीं करते, और मैं काफी निराश हो जाता हूँ. तो इससे डील करने के लिए भक्ति योग में कुछ हमारे पास मूल मंत्र या कोई ऐसे थॉट, फिलॉसफी, लॉजिक है जिससे मैं अपने आप को, अपने ऑलरेडी हंसा माँ है, प्रियम जी, शरद जी और क्लासमेट्स भी मैं बहुत पॉजिटिव फाइंड करता हूँ, लेकिन जो फैमिली में मैं पैदा हुआ हूँ वहां पर मुझे पॉजिटिविटी नहीं मिलती है. तो इसका क्या एक निवारण हो सकता है? जो भी बैकग्राउंड है आपका फैमिली का, उसमें किसी प्रकार से जब सबसे पहले तो प्रेम और एक लव एंड रेस्पेक्ट चाहिए एक दूसरे के प्रति, कि वी लिसन टू ईच अदर, वी कम्युनिकेट, वी आर एबल टू एक्सेप्ट
फ्रॉम ईच अदर द स्टैंड पॉइंट्स। तो वो तो फंडामेंटल है। ऐसा कोई स्पेसिफिक मंत्र नहीं होता कि इसका मंत्र करने से सबका माइंड चेंज हो जाएगा, ऐसा तो कोई भी नहीं दे पाएगा कभी भी। जी जो जिसको बदलना है वो अपने विचार से ही बदल सकता है। हम भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, हम एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं, और उनको अगर कोई इनसिक्योरिटी है या कोई चैलेंजेस हैं या कोई पास्ट हर्ट है, कोई दुख हुआ है जिसके कारण वो अभी दूर रहते हैं, आना नहीं चाहते, या कोई भय है कि भाई अगर हम जाएंगे तो और उलझ जाएंगे या कुछ गड़बड़ हो सकती है, या जो भी कुछ है उसका निवारण करना चाहिए पहले। और उसके लिए एक ह्यूमिलिटी इज द फर्स्ट मेन इंपॉर्टेंट थिंग, जो भक्ति में भी वही कहा गया कि पहले व्यक्ति को हम्बल बनना पड़ेगा। कभी कुछ गलत हुआ है तो अगर फॉरगिवनेस भी मांगनी है तो वो मांगना पड़ेगा। तो वन हैज टू बी दैट, so that from one's own side one has created that type of an environment। उसके बाद अगर वो आए तो अच्छा है, ना आए तो फिर we have to learn to accept कि भाई ठीक है, कोई कारण है, परिस्थिति है, people are what they are, we can't change everybody। अब इस given situation में what is the best that I can do, वो हमको आगे बढ़ के फिर करना है। भक्ति भक्ति तो यही कहेगी। अब भगवान कृष्ण भी गए थे शांति दूत बनकर, लेकिन वो कौरवों को मना नहीं पाए। अब भगवान स्वयं अगर असफल हो सकते हैं तो हमारी तो क्या बात है, हम कहाँ किसी को, मतलब वी कांट चेंज एनीबडी, कन्विंस एनीबडी, वी कैन ओनली क्रिएट द अप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट। वो हम उसका हमको प्रयास करना चाहिए कि उनके जो भी कोई प्रॉब्लम्स है, डाउट्स है, कोई कारण से वो दूर रहते हैं, तो उसका समाधान अगर हम कर सके तो अच्छा है। वो सब करने के बाद अगर वो नहीं आ रहे हैं तो फिर तो वी हैव टू एक्सेप्ट, फिर देन वी हैव टू सी व्हाट नेक्स्ट इज द बेस्ट दैट आई कैन डू। जी अजय, गुरुजी, आप मैंने एक पूछेंगे अपॉलोजी क्वेश्चन? तो की थी, लेकिन शायद उसमें ह्यूमिलिटी का भाव मिसिंग था, क्योंकि शायद मुझ में घमंड था कि मैं माफी मांग रहा हूँ। तो ये मैं फिर से प्रयास करूंगा गुरुजी। और स्केयर तो है, फियर है फैमिली में कि भाई पता नहीं कोर्ट हाँ, कचहरी करप्शन वगैरह। या अब वहां राफेल, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, बट थैंक यू वेरी मच गुरुजी, दिस हैज रियली इन्फॉर्म्ड या मी। थैंक यू। अजय। स्वामी जी ऐसे बोलते हैं कि ये अलग अलग उद्दृष्टि से या वो नजरिए से भक्ति होती। कोई भगवान को एक बालक के समान समझ के वैसे पूजा करता है, कोई सखा, कोई पिता, कोई लवर। तो इसके ऊपर थोड़ा सा हमको बताइए, थोड़ा सा एनलाइटन करिए। तो भक्ति क्या है कि हमारे मन में जो भावना है, जो प्रेम है, उसको हम भगवान की तरफ जब मन को मोड़ते हैं उसको कहते हैं भक्ति। तो अगर किसी में वात्सल्य भाव बहुत प्रबल है तो वो भगवान को अपने पुत्र के या पुत्री के रूप में देखेगा। किसी में अगर जो सखा भाव इतना प्रबल है, किसी में अगर कोई जो प्रियतम का भाव है, जैसे मीराबाई को प्रियतम का भाव था, रामकृष्ण परमहंस को एक एक बालक का भाव था कि मैं बालक हूं और काली मेरी माता है, और सुदामा को सखा का भाव था, अब हनुमान जी को सेवक का भाव था। तो हर एक व्यक्ति को अपने भाव के अनुसार जो अ, भगवान के प्रति उसकी भावना है, उसको व्यक्ति को एक संबंध बनाना है। क्योंकि भक्ति केवल तो भगवान के प्रति भक्त का संबंध भी हो सकता है, जैसे प्रहलाद जी भगवान को भक्त के रूप में देखते हैं। ये बाकी जो संबंध मैंने बताए वो हमारे लौकिक संबंध के हिसाब से भी हैं। तो ऐसा है कि हमारे मन में कौन सा सबसे मुख्य एक इमोशन है, और जिसमें हमको ये भी अनुभव होता है कि कभी-कभी उसकी पुष्टि नहीं हुई, या पुष्टि हुई हो तो भी ये हमारा प्रबल इमोशन है, तो उसको हमें भगवान की तरफ मोड़ना है। क्योंकि जब वो इमोशन स्ट्रांग है, उसको जब भगवान की तरफ मोड़ेंगे तो मन एकाग्रता एकदम अनायास प्राप्त कर लेगा। क्योंकि मन को एकाग्र करने के लिए क्या चाहिए? प्रेम चाहिए। अगर प्रेम नहीं है तो मन एकाग्र नहीं होता। अब जिसको क्रिकेट बहुत अच्छा लगता है, उसको किसी को बोलना नहीं पड़ेगा कि तुम बैठो, सीधे बैठो, एक तक ध्यान लगाओ, क्रिकेट को देखो, बाकी कुछ मत देखो, कोई बोलना ही नहीं पड़ेगा। वो व्यक्ति एकदम फोकस रूप से वो देखेगा क्योंकि उसको प्रेम है। तो इसी तरह जब हम नाम स्मरण करते हैं तो कई बार मन भटकता क्यों है? क्योंकि भावना नहीं है, प्रेम नहीं है पूर्ण रूप से। लेकिन जब एक भाव से कि भगवान मेरे पुत्र हैं,
एक पुत्र के रूप से मैं भगवान को देखता हूँ। तो ये भाव जो है वो तुरंत भगवान के प्रति जब वो उसको हम डायरेक्ट करते हैं तो फिर मन को आनंद आता है उसमें और एक एकाग्रता उत्पन्न होती है और व्यक्ति जुड़ जाता है भगवान से। और इसीलिए भगवान कोई हमारे लिए कोई एब्स्ट्रैक्ट वस्तु नहीं है, वो एक जीवंत सत्य है। जिस रूप में आप भगवान को देखेंगे उस रूप में भगवान आपको अनुग्रहित करेंगे। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम, गीता में भगवान कहते हैं कि जिस भाव से आप मेरे पास आओगे उसी भाव को मैं पुष्ट करूंगा। और इसीलिए भगवान के साथ एक संबंध बनाना चाहिए। सभी महात्माओं को आप देखो, सभी भक्तों को आप देखो, एक संबंध उनका होगा भगवान के साथ जो विशिष्ट संबंध है उनका, उनके टेम्परमेंट के हिसाब से। आप तुलसी रामायण पढ़ेंगे तो उसमें तो ये भी आ जाएगा कि रावण ने भी भक्ति ही की, उसको वैरी भक्ति कहते हैं कि भगवान को उसने अपना शत्रु बना दिया। बोले शत्रु के रूप में उन भगवान का ही तो चिंतन कर रहा है वो पूरा समय। तो भगवान को शत्रु बनाओ, मित्र बनाओ, पुत्र बनाओ, पुत्री बनाओ, सखा बनाओ, प्रियतम बनाओ, कुछ भी बना दो, लेकिन उस भाव वो आपके लिए वो नेचुरल भाव होना चाहिए। आप किसी को देखकर वो कॉपी नहीं कर सकते। और इसीलिए शास्त्र में ये कहा कि आप अपना आत्मनिरीक्षण करके एक भाव और एक संबंध बनाओ भगवान के साथ, और उस संबंध के द्वारा भगवान के साथ कम्युनिकेट करो और भगवान भी आपको रिप्लाई करेंगे। ऐसा नहीं है कि भगवान रिप्लाई नहीं करेंगे, भगवान करते हैं रिप्लाई। आपको अंतर प्रेरणा से भी उत्तर मिलेंगे, लोगों से भी मिलेंगे, कुछ परिस्थितियों से मिलेंगे, कहीं कुछ आप पढ़ेंगे उससे मिलेगा, बहुत सारे तरीके से भगवान आपको रिप्लाई भी देंगे। एक पूछना चाहेंगे आपसे, इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है कि जो ऐसे भी आपने बहुत पढ़ा हुआ है इसीलिए आपसे पूछ रहे हैं कि ऐसे भी कहा जाता है कि रावण ने जानबूझकर दुश्मनी मोल ली थी क्योंकि वो बड़े शिव भक्त थे और उनको चाहिए था कि उनको मोक्ष राम जैसे देवता के हाथों से मिले। ये कहाँ तक सच है? ये उन्होंने ये वैरी भक्ति की हो तो सच है, वो रामचरितमानस में ही आता है, क्योंकि वो भगवान राम के हाथों मरना चाहते हैं ताकि वो उनको मुक्ति मिले। तो वो तो रामचरितमानस में आता ही है, वाल्मीकि में नहीं आता, लेकिन रामचरितमानस में वो आता है, क्योंकि रामचरितमानस में भगवान राम सर्वोच्च हैं और बाकी सब उनके भक्त हैं, सभी के सभी उनके भक्त हैं। तो रावण भी उनका भक्त ही है उसमें, क्योंकि उसका प्रयोजन रामचरितमानस का है कि राम जी के प्रति भक्ति बढ़े। इसलिए वो सही है, लेकिन वो वाल्मीकि रामायण में नहीं, तुलसी में है। Anybody has a question, please unmute and ask your question. भगवान से क्या मांगना चाहिए? अब ऐसी कोई एक स्टैंडर्ड वस्तु तो है नहीं। अगर हम कहें कि भगवान से ये मांग लो कि भाई हमको आप मोक्ष दे दो, तो अगर आपके अंदर से वो इच्छा नहीं आएगी तो उसको मांगने का प्रयोजन ही नहीं है। भगवान से आपको क्या चाहिए वो आपको आइडेंटिफाई करके आपको मांगना चाहिए, उसमें कुछ गलत नहीं है। अब एक छोटे बच्चे को अपने माता पिता से क्या चाहिए? तो बोले मुझे खिलौना दे दो, मुझे कोई टॉफी दे दो, मुझे कोई, इतना ही तो बोलेगा। छोटा बच्चा ये थोड़ी बोलेगा कि मुझे 10 करोड़ रुपया दे दो, मुझे ये लैंड दे दो, वो तो नहीं बोलने वाला। उसको जो अनुभव हो रहा है कि मुझे इसकी आवश्यकता है, वो मांगो भगवान से। एक बार ऐसा एक परिस्थिति ऐसी आएगी जब आप ये समझेंगे कि भगवान से मैं जो जो मांग रहा हूं भगवान तो दे रहे हैं, अब मुझे भगवान से मांगने के लिए कोई बचा ही नहीं। मुझे भगवान से केवल ये मांगना है कि आप मुझे भक्ति दे दो, मुझे आप अपने आप से एक करा दो, क्योंकि पूर्णता ही हमको चाहिए। बाकी सब चीजें तो जितनी भी प्राप्त होगी वो तो नश्वर है, उससे वापस व्यक्ति को एक इच्छा होगी, एक इच्छा पूर्ण होगी, दूसरी शुरू होगी, दूसरी पूर्ण होगी, तीसरी शुरू होगी। लेकिन ये इच्छाओं की पूर्ति के बाद ही समझ में आता है, वो बौद्धिक रूप से समझ में नहीं आएगा ये। तो प्रहलाद जी ने क्या मांगा? प्रहलाद जी ने ये मांगा कि हे भगवान, नरसिम्हा भगवान से उन्होंने ये मांगा कि भगवान अगर आप, तो भगवान ने कहा कि मैं तुमसे बहुत
प्रसन्न हूं, तुमने इतनी मेरी भक्ति की और एक बार भी तुमको भय नहीं हुआ, तो मांगो जो मांगना है। उन्होंने कहा भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने आपकी भक्ति की, मुझे कोई ट्रांजैक्शन नहीं है कि मैंने इतनी भक्ति की तो आप उसके बदले में मुझे कुछ देंगे। आई हैव लव्ड यू फॉर सेक ऑफ लव, सो आई डोंट वांट एनीथिंग। तो भगवान कहते हैं कि नहीं नहीं मांगो फिर भी। तो वो कहते हैं कि अच्छा आपको देना ही हो तो ऐसा मुझे वरदान दीजिए कि मेरे मन में कोई इच्छा ही ना जागे। हाँ, क्या बात है। मेक मी डिजायरलेस, कि इच्छा ही कोई जागे ही नहीं, मतलब अपूर्णता का अनुभव ही ना हो, अपूर्णता का अनुभव ही निकाल दो हमारे जीवन से। ब्रह्म विद्या। तो वो उसका अर्थ क्या हुआ? अपूर्णता का अनुभव कब निकलेगा? जब व्यक्ति भगवान से एकत्र हो, एक हो जाएगा तब। तो भगवान उनको वो आत्मज्ञान दे देते हैं और प्रहलाद जी तो मुक्त हो जाते हैं। तो मांगने का तरीका क्या है? आप एक कोई विशिष्ट तरीका नहीं होता, आप भगवान से प्रार्थना भी कर सकते हैं। जनरली हम ये कहते हैं कि जब लोग मंदिर में जाते हैं तो वो क्या करते हैं, वो सबसे पहले अपना डिमांड लिस्ट शुरू कर देते हैं, मुझे ये दो ये दो ये दो ये दो। अरे जाओ भगवान के मंदिर में, पहले भगवान की प्रशंसा करो, भगवान का गान करो, गुणगान करो, स्तुति करो, स्तोत्र करो, ध्यान करो, उसके बाद मांगो जो मांगना है। उससे क्या होगा, धीरे 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 अपना ध्यान जो है वो भगवान की ओर ज्यादा बढ़ेगा और अपने मांग से, अपनी इच्छाओं से थोड़ा थोड़ा निकल जाएगा। तो मांगने का तरीका यही है कि पहले भगवान की स्तुति करो, उसके बाद जो चाहे मांगो। किसी भी भाषा में भी मांगो, अगर आप भाषा में व्यक्त भी नहीं कर सकते तो भगवान तो आपके हृदय में है, अंतर्यामी है, उनको तो पता है आपको क्या चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि आपने भगवान को कोई 2 सेंटेंस में बोल दिया तो समझ में नहीं आया उनको, और आपने 10-15 सेंटेंस में बोल दिया तो फिर ठीक से समझ में आया, तो फिर उन्होंने इच्छा पूर्ति की। ऐसा तो कुछ नहीं होने वाला। भावना का भाड़ा देते हैं। स्वामी जी, स्वामी जी, भारती जस्ट 1 मिनट, एक इसी last- बात को लेके वो एक चीज थी ना कि श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को भी पूछा था और दुर्योधन को भी पूछा था एक वर मांगने के लिए। नहीं, वो अर्जुन और दुर्योधन दोनों भगवान के पास गए हाँ थे। ओके, या सॉरी, हाँ। हाँ, तो पर उसके अर्जुन, बारे में आप बताइए कि कैसे पांडवों ने सही चीज मांगी और दुर्योधन की जो तमस की वृत्ति थी उसकी वजह से उसने जो मांगा वो क्षणभंगुर और नश्वर था। देखो दुर्योधन पहले पहुंचा था और वो भगवान के सिरहाने पर जाकर बैठ गया, और अर्जुन बाद में आया लेकिन वो भगवान के चरणों पर जाके बैठ गया। तो भगवान ने जब आंख खोली, वो सो रहे थे, तो उन्होंने पहले अर्जुन को देखा। तो उन्होंने ये कहा कि मैं अर्जुन को चॉइस करने के लिए दे रहा हूं, एक तरफ मैं हूं, मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, दूसरी तरफ मेरी नारायणी सेना है, एक अक्षौहिणी सेना। तो अर्जुन के पास ऑलरेडी सेना कम थी, 7 अक्षौहिणी अर्जुन के पास थी और 10 अक्षौहिणी दुर्योधन के पास थी। तो दुर्योधन को तो ये था कि अरे कृष्ण तो वो हथियार भी नहीं उठाने वाले हैं, और अगर अर्जुन ने एक अक्षौहिणी ले ली तो मैं कृष्ण को लेकर क्या करूंगा। लेकिन अर्जुन ने भगवान का ही चयन किया और उन्होंने उनकी सेना का चयन नहीं किया। वो अपने धर्म पर सही थे। अर्जुन ने, बिकॉज उनके मन में भाव है भगवान के प्रति, इसलिए उन्होंने भगवान का चयन किया। तो स्वाभाविक रूप से अब नारायणी सेना गई दुर्योधन के पास, और वो चॉइस अगर मैनेजमेंट की दृष्टि से देखें तो कृष्णा इज एन अनप्रोडक्टिव रिसोर्स, इज अ लायबिलिटी। व्हेन यू ऑलरेडी हैव अ लेस क्वांटिटी ऑफ आर्मी, आप वो लायबिलिटी को उठा के क्यों जाओगे। लेकिन दैट वाज द गेम चेंजर, क्योंकि ही इज अ ग्रेट स्ट्रैटेजिस्ट, और भगवान ने ही अर्जुन को उसके मोह से भी मुक्त किया। तो इसीलिए अपने आप को अंदर निरीक्षण करके अपने चॉइस करने चाहिए कि भगवान से हमें क्या चाहिए और उसके हिसाब से मांगना है। अच्छा, अभी मुझे जाना पड़ेगा, अधिक एक मास का आखिरी सवाल सत्संग ले शुरू हो लीजिए जाएगा। प्लीज प्लीज, एक आखिरी सवाल। भारती सॉरी, नो नो इट्स ओके, भारती पूछ लीजिए हाँ जल्दी जी, से। पूछ लीजिए जल्दी। जैसे हाँ आपने बताया कि हम भगवान से प्रेयर करते हैं और मांगते हैं। अभी हाँ। मेरे पति हैं, जैसे वो बोलते हैं मांगना क्या है, भगवान को तो पता है मुझे क्या चाहिए। हम्म। सो नहीं ठीक है, अगर आप उस भाव में रह सकते हैं, शरणागति के भाव में, तो फिर जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए।
हाँ, that way he says. हाँ, लेकिन अगर उस शरणागति के भाव में हम नहीं रह पाते और हमारे मन में इच्छा आती है कि मुझे ये चाहिए, तो फिर भगवान को बता दो कि भगवान हमको ये चाहिए, आप जरा अनुग्रह करें। तो उससे क्या होगा कि जब इच्छा की पूर्ति होगी तो भाव यही रहेगा कि ये भगवान की कृपा से हुआ है। नहीं तो मन क्या हाँ, कहेगा कि मैंने अपने पुरुषार्थ से प्राप्त किया, मेरा प्रयास था, मुझे प्राप्त हुआ, तो ये अहंकार बढ़ जाएगा। उससे तो बेहतर है कि हम ये माने कि भगवान आपकी कृपा से ही पूर्ण हुआ, मैंने हर रोज आपसे मांगा और आपने मुझे धन्य कर दिया, तो ये अच्छा है। और उससे भी बेहतर है कि भाई कुछ मांगे ही नहीं, क्योंकि भगवान तो सर्वज्ञ है, सर्व अंतर्यामी है। तो जो स्थिति में वो रखें उस स्थिति में हम एक्सेप्ट करके हम जी रहे हैं भगवत स्मरण से, तो वो तो उससे भी बेहतर स्थिति है। तो हर ये लेवल्स है, अलग अलग लेवल्स है, इसमें कोई राइट और रॉन्ग की बात नहीं है। जिस लेवल पर हम हैं उस लेवल को हमको ऑनेस्टली एक्सेप्ट करके उस लेवल से आगे फिर हमको बढ़ना चाहिए। थैंक यू स्वामी जी। स्वामी जी, Thank you. मैं योगा इंस्टीट्यूट और हंसा जी की तरफ से तहे दिल से आपका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। और सचमुच हम लोगों को बहुत ही ज्ञान प्राप्ति हुई है। पर मेरे भगवान को पता है कि मैंने मेरे भगवान को बोला कि स्वामी जी हमारी दरख्वास्त वापस मंजूर करे और एक बार इस साल में स्वामी जी हमसे बात करें, ऐसा मैं अपने भगवान को बोल दिया है। हाँ जी, भगवान की इच्छा से जो होगा अच्छे से ही होगा, आगे करेंगे, देखते हैं भगवान की क्या इच्छा है। नहीं, सचमुच इतना संगीन टॉपिक है, लेकिन उन छोटे छोटे कहानियों की वजह से बहुत गहरी फिलॉसफी हमें समझ में आई है। आई Thank you. होप कि हम सब इसके ऊपर अमल करके अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएंगे। हाँ जी, इनफैक्ट आपसे वादा करते हैं कि हम अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएंगे। बहुत सुंदर, अति सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबसे सत्संग करके बहुत अच्छा भी लगा। अभी मुझे अधिक मास का एक दूसरा सत्संग है, इसलिए जल्दी मुझे जाना पड़ेगा। यस, अधिक मास है, इसीलिए अधिक लोगों को ज्ञान प्राप्ति। हाँ जी, थैंक यू, हरिओम। स्वामी जी प्रणाम। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रणाम, थैंक यू, हरिओम।